Good morning, students of class 5th. So today we are going to start the second chapter of moral value, that is loyal friend. Loyal friend means a truthful friend. So in this chapter we are going to discuss about loyalty, trustworthiness, faithfulness and reliability. See, these all means truthfulness. In सबका meaning क्या होता है? Truthfulness. Now in this chapter we are going to study about a loyal friend. A penguin, a reindeer, and a fox were great friends. One day, when the penguin and the reindeer were on a stroll in the forest, they found a heap of fruits and decided to keep it a secret. Now, a penguin, a reindeer. Reindeer means it's a type of large brownish wild animal that eats grass. Reindeer एक बहुत बड़ा wild animal होता है जो कि brownish color का होता है. Can you see in this picture? This is reindeer. एंड अ फॉक्स. ये तीनों कौन थे? ग्रेट फ्रेंड्स थे. अ पेंगुइन, रेंजर एंड अ फॉक्स. वन डे जब पेंगुइन जो था वो एंड द रेंजर, पेंगुइन और रेंजर ये दोनों जब स्ट्रॉल कर रहे थे, स्ट्रॉल मीन्स वॉक कर रहे थे फॉरेस्ट में, तो उन्होंने क्या देखा? एक हीप ऑफ फ्रूट्स देखा. हीप मीन्स प्लेंटी, बहुत सारे फ्रूट्स देखे. एंड डिसाइडेड टू कीप इट अ सीक्रेट. और क्या डिसाइड किया कि वो ये चीज़ सीक्रेट रखें. वाई आर यू गाइज सो हैप्पी? Now, Fox, see this is Fox. Now Fox is speaking. Why are you guys so happy? कि तुम इतने खुश क्यों हो? Oh dear friend, we cannot tell you anything. It's a secret. Now, reindeer is saying, oh dear friend, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये एक secret है. Don't worry, tell me. I won't tell anyone. Now Fox is saying कि चिंता मत करो, don't worry. मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा. Trusting the fox, both of them told the fox about the heap of fruits. But the fox forgot about the promise on reaching the village. Now, trusting the fox, fox को trust करते हुए, both of them told the fox about the heap of fruits. तो दोनों ने क्या किया? फॉक्स को हीप ऑफ फ्रूट्स के बारे में बता दिया, मीन्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स के बारे में. बट द फॉक्स फॉरगॉट अबाउट द प्रॉमिस ऑन रीचिंग द विलेज. लेकिन विलेज पहुँचने तक जो फॉक्स था वो अपना प्रॉमिस भूल गया. देयर इज़ अ बिग हीप ऑफ फ्रूट्स इन द फॉरेस्ट. उसने सब, फॉक्स ने क्या किया? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सब एनिमल्स को रिवील, सब एनिमल्स को बता दिया कि फॉरेस्ट में बहुत बड़ा हीप ऑफ फ्रूट्स हैं, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स हैं. He didn't keep his promise, I guess. Now reindeer is speaking कि he didn't keep his promise. उसने अपना promise नहीं रखा, वो ऐसा सोच रहा है. The same day both the friends found another place full of fruits. They've told the fox about it again. The fox again broke his promise and told everyone about the fruits. नाउ सेम डे, उसी दिन दोनों फ्रेंड्स जो थे उन्होंने एक और जगह देखी जहाँ पे भी क्या था? फुल ऑफ फ्रूट्स थी. वो जगह भी फुल ऑफ फ्रूट से भरी हुई थी. दे टोल्ड द फॉक्स अबाउट इट अगैन. उन्होंने फॉक्स को फिर बताया उसके बारे में. फिर फॉक्स ने दोबारा से वो प्रॉमिस तोड़ दिया और सबको फ्रूट्स के बारे में बता दिया. How could he again break his promise? Now as you can see in the picture, reindeer is saying कि वो दोबारा से अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता है. Let's teach him a lesson. Now reindeer is saying, चलो हम उसको एक लेसन समझाते हैं. The next day they called the fox to talk. Next day उन्होंने फॉक्स को बुलाया बात करने के लिए. We will tell him false things and make him realize his mistake. Now what penguin is saying? Penguin बोल रहा है कि हम उसको फॉल्स, झूठी चीज़ें बताएंगे और उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज़ करवाएंगे. ओके, उसका एहसास दिलवाएंगे जो उसने मिस्टेक की है. There is a fruit orchard nearby with delicious fruits. Now reindeer is saying there is a fruit orchard. Fruit orchard means a piece of land on which fruit trees are grown. ये piece of land होता है जहाँ पे fruit trees grow किए जाते हैं. तो उन्होंने क्या बताया फॉक्स को कि एक फ्रूट ऑर्चर्ड है पास में ही नियर बाय, जहाँ पे बहुत डिलीशियस टेस्टी फ्रूट्स है. Also we have found a lake full of fish and the best part is there is no need of any effort to catch them. Now what penguin is saying, और penguin उसको बताता है कि हमने एक लेक देखी है जो कि किससे भरी हुई है? पूरी फिश से. और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कोई एफर्ट, कोई मेहनत नहीं लगानी है उनको कैच करने के लिए. The fox told all the animals, including the polar bear, about the lake and orchard. All the animals reached the lake.
but on not finding anything they felt deceived and beat the fox badly. नाउ फॉक्स जो था उसने सब एनिमल्स को बताया, इंक्लूडिंग पोलर बियर को भी, लेक के बारे में जहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी, और ऑर्चर्ड जहाँ पे बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट्स थे उसके बारे में बताया. ऑल द एनिमल्स रीच द लेक. अब सब एनिमल्स कहाँ पहुँच गए? लेक के पास. लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथ धोखा हुआ है, डिसीव मीन्स धोखा हुआ है, कि उनके साथ चीटिंग हुई है, तो उन्होंने क्या किया? फॉक्स को बहुत बुरी तरीके से मारा. वाई डिड यू टेल अ लाई? नाउ डियर इज स्पीकिंग, कि तुमने झूठ क्यों बोला. नाउ यू गॉट टू नो द इफेक्ट ऑफ बीट्रेयल, डोंट यू. नाउ पेंगुइन एंड रेनडियर इज सेइंग टू फॉक्स दैट, अब तुम्हें पता चला कि तुमने जैसे धोखा दिया हम सबको, तो उससे क्या उसका बैड इफेक्ट हुआ. येस, फ्रॉम नाउ आई विल नेवर टेल अ सीक्रेट टू एनी वन. नाउ फॉक्स हैज़ रियलाइज्ड, फॉक्स को अब रियलाइज़ हो गया कि अब से वो आगे से कोई भी सीक्रेट किसी का नहीं बताएगा. सो चिल्ड्रन, व्हाट मॉरल हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? कीपिंग समवन्स ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. किसी का भी, अगर आपको कोई भी कोई चीज़ ट्रस्ट करके कुछ भी बता रहा है और आप उसको किसी से नहीं बता रहे, तो वो आपके सबसे अच्छी क्वालिटी होती है. एंड वी हैव टू अर्न इट विद लॉयल्टी. और वो हम कैसे कमाई जाती है? बिल्कुल सच्चाई, लॉयल्टी के साथ. सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर वर्ड्स. तो हम जो भी हम बोलते हैं उसको हमेशा हम वो उस पर अमल रहना चाहिए जो हम बोल रहे हैं. सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर वर्ड्स.